that you can see it later and then you can continue here. So first I would like to introduce you myself. My name is Arpit. I work in HR in your company. And I am here to groom you on interview skills and the resume writing. So first session we are focusing on the resume writing. Then there we have discussed about SWOT analysis and the time management ka quadrant, right? Because they were wanted to know. Second, thank you so much. Second, we discussed on second class, that was on EQ, emotion quotient, and Enneagram test, and everyone has given. So they all got to know what kind of skill set they people perceive it. Okay. So this was the thing. So and today we will going to see about what is the employer's expectation. Employers का क्या expectation होता है जब वो इंटरव्यू में लोगों को कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं. ऑन दैट वी विल डिस्कस अपॉन एंड देन विल स्टार्ट अबाउट इंटरव्यू हाउ इंटरव्यू ट्रेनिंग्स एक्चुअली. सो यू आर ओके, कंफर्टेबल? Yes, sir. And I think you had one celebration last week. How was it? How it was? You have not called me actually. I was बुलाना था मुझे, मैं भी फ्री था. चलो. So before we start, anything you want to ask on the last session, what has happened and the previous session? Any question, any doubt you felt that I should know? कुछ भी हो सकता है ना, कि जैसे टेस्ट के बारे में हो गया, या उसके पहले हमने बात किया रीजनिंग राइटिंग. एनी क्वेश्चन डू यू हैव? सर, अगर कोई अपना जोर से बोलो. कोई अपना ये चेंज कर रहा है, फील्ड चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो इंटरव्यूअर उसको पूछेगा आपने क्यों स्विच किया, तो उसको फेस कैसे करें होंगे अभी तक उसमें. हाँ, वो इंटरव्यू वाला जब करेंगे दैट टाइम आई टेल यू. बट इट इज रियली माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस, ट्राई टू स्टिक टू ए पॉइंट और मे बी योर करियर where exactly you can able to establish analysis. What happens, पहले इसलिए पहले ही सोच लो करियर करने के पहले कि आपको अगले 30-40 साल उसी में डालने हैं. अगर आप 20 साल के हैं तो अगले आने के 60 साल तक, यानी अगेन नेक्स्ट 40 years, and if you are 25 then next 35 years you need to work into that field. So before going into this, make yourself confirm that I will be diving into this. मैं इसमें ही स्विमिंग करने वाला हूँ. तो जो स्विमिंग पूल आपकी चॉइस का होना चाहिए, राइट? If you are a singer, let's say if you are a singer and you work for analysis, so please don't do that. मन मालूम जरूर नका, है कि नहीं? That will not help you, because see, whatever you are getting, it should be of your choice. Right? Let's say a Jain girl, if marries to any Maratha guy, let's discuss. That Jain girl will, she will unable to eat anything. कारण त्या मराठी मुलाला कांदा, लसूण, मटण हे सगळं आवडेल. तर तेच हे बघायला पाहिजे आपण. बिफोर वी डू एनिथिंग, वी शुड एबल टू चेक आउट व्हॉट एक्झॅक्टली वी वॉन्ट टू परसीव इन लाईफ. Accordingly, you should do it. And one more thing. With that, will you able to become a good person? जे तुम्ही क्षेत्र निवडलं, जो आपने करियर चुना है, can it have a parameter to develop yourself as a good human being? It has means उसमें थोड़ा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है. समझ में आया? See, changing is not wrong, but then you should able to answer accordingly. मुझे भी बोला गया था जब मैं तीसरे जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था मेरे, तो मैं फर्स्ट जॉब बोले कि हम ये काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ बीपीओ एक्सपीरियंस. तो मैंने व्हाई नॉट, यू विल काउंट.
So he said, no, it is not HR experience. HR experience means HR ops, TA, LNOD, या फिर HR analytics, या फिर payroll, time office, या फिर PMC होता है. Whatever you have learned that is not related to HR. So I said, one thing I would tell you, sir. That time I answered him. Whatever I know, what I have learned into that job, probably of your entire staff doesn't know. That is good communication skill or good telephonic etiquette skill. The way I speak on telephone, because I have learned into BPO. One Anglo-Indian lady has taught me how to speak on phone. I got wonderful classes on that. I've been trained with the Infosys campus. Infosys Mysore campus के बारे में सुना है क्या? Yes. One of the best campus in, I mean, अगर कभी मौका मिले तो जाके देखो या फिर गूगल करके देखना. I was there for 2 months. So that kind of training I got it. So I'm trained for a thing that of course it helps me to do perform a regular job or probably a core job. You got my point? So you have to defend like that. I'll tell you how exactly. Okay? At your case, what you should speak. Okay? Any other question, guys? Sir, if your previous experience is about only 2 months, then it is important to note in resume. I worked for BPO 2 months. That's why. Minimum 6 months. Don't put something 2-3 months. Either it is internship, that's fine. But lesser than 6 months, don't put anything. 2 months में क्या सीखोगे? हम 2 महीने कुछ तो भी क्लासेस कर लेते हैं, लेट्स हम भूल जाते हैं बाद में. किसने सी लैंग्वेज का क्लास लगाया था सबसे पहले? लगाया क्या? किसी ने लगाया होगा. कब लगाया था बेटा? सेकंड ईयर में सर. अभी तुम कौन से स्टैंडर्ड में? अभी क्या? अभी 2020 अगस्त 2021 थोड़ा भूल गए ना सबका. हाँ भूल गए ना थोड़ा सा. C language को भूल गए. That's what I'm saying. See what happens? 2 महीने में कुछ नहीं सीखते बेटा, और ये डालना भी नहीं है. It shows that how you're not having the stability, and that is very much important. ठीक है? So shall we start now for today's session? Yes, sir. Sir, I have a question. Please. Sir, as you told us to reference. Speak louder. Actually क्या है ना, थोड़ा आवाज मेरा खराब हो गया, कान भी बहुत कम हो गया. Sir, you told us to write in the resume about the reference. As we are fresher, what we can write? You can write about references of your senior, those who are into very good companies, or rather your professors. These two. Huh. Any question, guys? No. Shall we start? Yes, sir. Employees expectation, competency we look at. हम क्या देखते हैं? हम एक prospect यानी कैंडिडेट में हम क्या देखते हैं? What we look into one candidate, so that we will discuss upon. आपको क्या लगता है? क्या देखते हो? Yes. Representation, communication skill, creativity, body language, huh? Honesty. Yes, correct. Dedication. Confidence. We should have that much of knowledge. Knowledge. Yeah. So basically, all these things we all have, right? ये सब चीजें हमारे में. तो हम डरते क्यों हैं इंटरव्यू के लिए? डरते नहीं ना? डरते क्यों हैं? See, try to understand. ये सब चीज हम में होती है. ये सारी कॉम्पिटेंसी जो मैं यहाँ लेकर आऊँ ना, ये सब हम में होता है, बट हम दिखा नहीं पाते, या फिर we are unable to show that skill set, or rather what we can see कि वो जो skill sets है, that is the core thing, and on that we need to think upon. I mean, हमें यही देखना है, वही हमें चीज में फोकस करना है
कि हाउ आई कैन एबल टू एग्जिबिट दैट थिंग, जो मेरे में जो चीज है हाउ आई कैन एग्जिबिट दैट थिंग, रादर अगर वो चीज मुझ में नहीं है, लेट्स से अगर मैं समझो ये चीज आप में नहीं है, तो वी नीड टू थिंक अपॉन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये मुझ में मैं कैसे लाऊं, हाउ आई कैन, वो मैं चीज को कैसे परस्यू करूं, वो चीज हाउ आई कैन टेक दैट थिंग इनटू मी। ठीक है, हो सकता है ये सारे जो किसी में क्रिएटिविटी ज़्यादा होगा, किसी में कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा, किसी में कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, किसी में डेडिकेशन ज़्यादा होगा, सो एवरीवन इज द मिक्स, राइट। सो वी नीड टू सी कि अगर एक हर चीज इसमें से हमें कम है, एज अ गुड वर्कर वी आर डेवलपिंग एज अ वर्कर, राइट, एज अ गुड वर्कर और एज एन एम्प्लॉय वी शुड हैव दैट क्वालिटी विद इन मी, राइट। तो हम उसके ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज बेसिक ऑफ एकेडमिक्स, कुछ नहीं, शुद्ध नॉलेज पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं घुमा सकते तुम, शुद्ध नॉलेज। हार्डवेयर नेटवर्किंग अगर आपको आता है तो उसका शुद्ध नॉलेज ही पता होना चाहिए। यू कैन नॉट मेक रूम, आई मीन उसके आजू बाजू में बात नहीं करना है, we need to tell the specific and correct answer only। लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू के टाइम 10 किताबें पढ़ते जाते हैं। आई वुड सजेस्ट डोंट रीड एंटायरली बिफोर इंटरव्यू, रीड अ बेसिक बुक, बेसिक वन, क्योंकि इतना हाई फाई ना कोई पूछता भी नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में पूछते क्या, तो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। so, जैसा अभी तुम्हारा बेसिक क्या है? हाँ ठीक है, तो जैसा मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप में बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ है, इट्स फाइन, बट इफ यू आर अनेबल टू आंसर अ बेसिक क्वेश्चन, नो, दैट इज द फर्स्ट रिग्रेट ऑफ योरसेल्फ। ये ध्यान रखिए। बेसिक जो है, जो आपके इंजीनियरिंग में बेसिक में पढ़ा होगा फर्स्ट सेकंड से में, वो थोड़ा पढ़ लो आप, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, बस कुछ नहीं होता, पूछते उससे ज्यादा एक हाथ, और जनरल नॉलेज रहता है जो कि न्यूज़पेपर से पढ़ के अपन डाल सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। सो मोर और इम्पोर्टेंट इज बेसिक, विदाउट नॉलेज एवरीथिंग इज फेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर परफॉर्मिंग एनी जॉब देयर आर 3 थिंग्स रिक्वायर्ड, कॉम्पिटेंस बोलते हैं उसको। उसके ऊपर ही पूरा हमारा HR डिपेंडेंट है। एक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, एक बिहेवियरल और एक एटीट्यूड। ये 3 चीज होता है हमारे इसमें, टेक्निकल, बिहेवियरल एंड एटीट्यूड। टेक्निकल कॉम्पिटेंसी लाना बहुत इजी है, पढ़ के ही आ सकती है, इट्स वेरी इजी। यू हैव टू रीड इट लॉट, यू हैव टू स्टडी, प्रैक्टिस इट लॉट, देयर ओनली वन वे, दिस इज द हार्ड वे एक्चुअली, मीन्स यही एक तरीका है और यही तरीके से यू कैन अर्न द टेक्निकल नॉलेज। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यूट्यूब पे 4 वीडियो देख के हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट इजी एज मेकिंग रेसिपीज, ओके। सो योर बेसिकली योर टेक्निकल नॉलेज इज लाइक स्टडी ओनली, understood? Yes, sir. Yes, sir. Second is behavioral knowledge. Behavioral knowledge is about for performing that job, what kind of behavioral quality I should have. That is a behavioral knowledge. Let's say a person who works into a sales and marketing. तो उसका behavioral knowledge क्या होना चाहिए? चलो अब उसका बात करते हैं। उसका टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकल प्रोडक्ट हो गया, अगर उसको मशीन बेचना है, तो ही शुड नो दैट थरो वायर्स, बीट्स एंड एवरीथिंग, ही शुड नो कि भाई ये कहाँ, कौन सा कंपनी का, कौन से ब्रांड का लगाया है। दैट इज ए टेक्निकल नॉलेज फॉर हिम। एंड बिहेवियरल नॉलेज इज व्हाट, बिहेवियरल स्किल्स व्हाट ही रिक्वायर्स, कम्युनिकेशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल एंड नेगोशिएशन स्किल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑल these skills he requires to do that. And third and very important is attitude. What does it mean, attitude? मुझे बेचना है कि नहीं, मुझे इसे बेचना है कि नहीं, ये यस या नो ही रहता है, इसमें परसेंटेज नहीं रहता। जैसे
टेक्निकल नॉलेज में हाँ इसे 80% टेक्निकल नॉलेज है हम बोल सकते हैं, 90% टेक्निकल नॉलेज है हम ऐसा बोल सकते हैं. बिहेवियरल स्किल्स हाँ ही माइट बी गुड एट इंग्लिश और लिंग्विस्टिक स्किल, इसका स्किल हम बोलेंगे 7 out of 10, 6 out of 10. He might be negotiable out of 80 out of 90%. Likewise, we can पर उसमें ये रहेगा, उसमें स्केल रहेगा, बट इसमें ना एक ही स्केल है, यस और नो. एटीट्यूड इज यस मीन्स 100%, नो मीन्स 0. ऐसा कभी देगा कि इसमें 5% एटीट्यूड है, ऐसे नहीं होता कभी, इट्स नॉट पॉसिबल. गॉट द पॉइंट? Yes. तो उसका एटीट्यूड क्या है, उसको बेचना है या नहीं, नहीं तो 0. बेचना है तो उसका ये एटीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, उसके टारगेट पे. उसका अगर समझो 100% हो गया तो नहीं बेचेगा वो. मैं ये हफ्ते में ये महीने में नहीं करूँगा, अभी अगले महीने में डालूंगा. So basic of academic is more important, right? इसमें छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मैं. You all must be knowing it also, but still I would like to tell. जब ये चलता है पांडवास एंड कौरव्स, वो एक दे गोज टू टेक दी शिक्षा, राइट? तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, वहाँ पे उनका कुल गुरु सिस्टम रहते, वही रहते हैं, वही वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. आणि हु इज नॉट कंफर्टेबल विथ हिंदी? आई एम सॉरी, हु इज नॉट कंफर्टेबल विथ मराठी? हाथ ऊपर करो. बिल्कुल भी नहीं आता है. थोड़ा कम. अच्छा, नहीं एक्चुअली मेरा हिंदी बहुत ही वीक है, तो मैं आई कंफर्टेबली स्पीक इंग्लिश और मराठी. तो आई ट्राई टू स्पीक हिंदी इन बिटवीन. But if excuse me if I use something wrong words in Hindi, okay? So द्रोणाचार्य आणि तर त्यांचं ते दररोज त्यांचं सगळं चालू असायचं, कार्यक्रम चालू असतो. ते एक दिवस ते काय शिकवतात, धनुष्यबाण कसं लावायचं, तर ते पोपट लावतात. ती गोष्ट माहितीच असते सगळ्यांना. तर तिकडे सगळ्यांना सगळं दिसतं, म्हणजे सगळ्यांना कोणाला झाड दिसतं, कोणाला पेरू दिसतो झाडाचा. भीमाला पेरू दिसतो ना, त्याला खायची आवड असते. तर कोणाला तो म्हणजे त्यांचा मोठा भाऊ युधिष्ठिर, त्याला तिथे जीव दिसतो. तो म्हणतो मी कसं मारणार, तिथे जीव आहे. तर तो म्हणतो की मी मारू शकणार नाही, कारण पण त्याला आपल्या तिथे काय लावायचं होतं, फक्त पक्षाचा डोळा. तर ही वॉज जस्ट इमॅजिन की त्याच्यामध्ये अंश आहे देवाचा, म्हणजे जीव आहे, त्यामुळे तो त्याला मारू शकणार नाही, असं त्याचं मत होतं. ठीक आहे. सो देर आर डिफरेंट पीपल हैव डिस्कस्ड एंड थॉट मेनी थिंग्स, लाइक बाकी वहाँ पे दुर्योधन भी था, फिर उसको तो झाड़ के पक्षी दिखे, फिर वहाँ पे और उसको पक्षी दिखे. सो देर आर डिफरेंट पीपल हैव सीन डिफरेंट थिंग, राइट? बट द बेसिक व्हाट ही हैज सेड टू सी द आई ऑफ दैट पैरट, करेक्ट? द बेसिक ऑफ इज लाइक दिस. So similarly, the Arjun, what he has done it, he said only one thing, I only can see the eye of this parrot. You got the thing? Yes. So basic of this is like this only. He was very good क्या बोलते उसको? Archery. He is very good of like into this. वो बहुत बड़ा धनुर्धारी था, but उसका basic एक ही था. Basic is what? उसको उसका लक्ष्य पता होना चाहिए. उसका लक्ष्य उसे पता है. क्या था उसका लक्ष्य? हाँ, उसका फोकस ही सही था. तो वही प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर यू बिकम इन एंटायर लाइफ, द बेसिक थिंग इज वेरी स्मॉल, योर फोकस. व्हाट इज योर एकेडमिक थिंग? आज मैं पढ़ा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मैं ओडी इंटरवेंशंस करता हूँ या फिर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एलएनओडी में बहुत कुछ कर रहा हूँ, 9 बॉक्स मॉडल बनाता हूँ, सब कुछ. मेरा बेसिक ही है. इज दिस, ये हमारा बेसिक है. हम इस पे ही काम करते हैं. आदमी लेना हो तो हम इस पे आते हैं, आदमी को बाहर निकालना हो तो इस पे आते हैं, आदमी को सिखाना हो तो इस पे आते हैं, आदमी को ऐसे सैलरी इंक्रीमेंट करना हो तो हम इस पे आते हैं. तो ये हमारा बेसिक है, करेक्ट? तो बेसिक इज मोर इम्पोर्टेंट.
यू गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. इससे और कुछ दूसरा चीज तो नहीं होगा। फोकस पर्सनैलिटी, क्या समझ में आ रहा है इससे? क्यों लगता होगा कंपनी को फोकस पर्सनैलिटी? सर एक टारगेट मिलता है कंपनी को भी, उन्हें परफॉर्म करने के लिए पीरियड मिलता है, तो उसमें उनको ऐसे क्लाइंट्स ऐसे एम्प्लॉयज होना कि वो टारगेट में उनका काम हो सके। Yes. Now she has given another topic on top. टारगेट। टारगेट एक बहुत बड़ा चीज होता है, हर लोगों को मिलता है। टारगेट का ना एक सीन है। टारगेट इन्हें टॉप टू बॉटम होता है। ये सब जो कंपनी का एमडी है, ठीक है, जो कंपनी का एमडी रहेगा ना, वो एक टारगेट लेगा, भाई इस साल मुझे 500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना है। तो हाउ ही विल जनरेट? तो ही हैज टू थिंक अपॉन, ठीक है। तो ही विल डिस्कस विद मार्केटिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, एचआर हेड, फाइनेंस हेड। He will discuss with all these people, correct? Then ये लोग अपने अपने तरीके से टारगेट लेंगे। क्या होगा? तो एमडी बोलेगा भाई अपने को 500 करोड़ लोग चाहिए, सॉरी 500 करोड़ अपने रेवेन्यू जनरेट करना है, उसके हिसाब से वो टारगेट जनरेट करेंगे। तो बोलेगा चलो 500 करोड़ के लिए हमें बेचना पड़ेगा माल उतना बाहर, तो कितना टन माल बेचना पड़ेगा? 500 करोड़ के वर्थ का, यानी कितना हो गया समझ लो 15,000 करोड़, ठीक है। इतना माल बेचेंगे तभी 500 करोड़ आएगा ना रेवेन्यू। तो 15,000 करोड़ अगर माल बेचना है तो उसके लिए उतना पैसा लगेगा। तो पैसा कितना लगेगा? तो उसके हिसाब से फिर ये फाइनेंस टीम डिस्कस करेगा, बोलेगा कि 300 करोड़ रुपए हमको चाहिए, तो ये कहाँ से जनरेट करेगा? तो फिर ये अपने बैंकर टीम, सीए टीम, सीएस टीम, आईसीडब्ल्यू सब टीम को ये बुला के उनसे डिस्कस करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये इतना ना प्रोडक्शन करना है 15,000, तो प्रोडक्शन जो वाला टीम रहेगा, जब अपना एचओडी रहेगा, वो क्या बोलेगा भाई इतना प्रोडक्शन करना है, तो इसका मेरे को 365 डेज के हिसाब से मुझे प्रोडक्शन प्लानिंग बनानी पड़ेगी, पीपीआई से बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल टीम बनानी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। तो वो फिर उसके हिसाब से ही विल डिवाइड दैट वर्क, करेक्ट। तो फिर इतना मुझे करने के लिए इतने आदमी लगेंगे, तो उनको लगेंगे समझो 500 लोग लगेंगे। 500 लोग हैं क्या हमारे पास? तो फिर वो एचआर के पास आएगा, तो एचआर के साथ डिस्कस होगा कि भाई इतने लोग आपको 500 कब लगेंगे, तो उसके हिसाब से इनके प्रोडक्शन प्लानिंग के हिसाब से इनके साथ डिस्कस करके हमें मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब मैन पावर प्लानिंग हो जाएगी उसके हिसाब से फिर ये टारगेट नीचे आएंगे, इसके प्रोडक्शन वाले के टारगेट नीचे आएंगे, फाइनेंस वाले के टारगेट ऐसे। तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच होता है। जो हम टारगेट की बात करें इज टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे ये ड्राइव होता है। जो तुम्हारे मैनेजर का ये होता है टारगेट, उसमें से सम ऑफ द पोर्शन इज योर टारगेट, करेक्ट? यू अंडरस्टूड गाइस? सो व्हाट इज फोकस पर्सनालिटी? सर जो काम दिया है मतलब उसी के ऊपर फोकस करके मतलब वो कंप्लीट करना है, कोई डाइवर्ट वगैरह नहीं। करेक्ट, दिस इज एकदम करेक्ट है। See what happens, you know, there are different we are into an environment actually. हम एक environment में छोड़े हुए आदमी हैं, right? एक we are the element, we survive into an environment. तो हमारे साथ चीज कैसा हो जाता है ना, we get influenced very fast, है ना? जैसे let's say we are with the mobile, हम थोड़ा कुछ देखते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। मुझे याद है कि मुझे रिज्यूमे भेजना है, फिर मैं जीमेल ओपन करता हूँ तो लगने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसमें मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। देन आई स्टार्ट लुकिंग एट रील्स, मैं वहाँ देखते रह जाता हूँ, तो आई वेस्ट माई टाइम देयर। मेरा इधर जीमेल ओपन हो गया, बट इवन तो
I waste my time into watching reels. So this is unproductive work, right? Yes. You have to send resume, that is your planned work. But then we don't do that. We do check out these things. So similarly there are many things. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं due to which we also are not focusing on our hobbies and interests. हम क्या करते हैं? हम everyone pursues their own hobbies and interests, but still जैसा हम like as in personality हमें हमारा काम भी करना है, यानी your core work you have to do. You have to pursue your hobbies and interests also. These three things, for that only we have to live life, correct? But हम क्या करते हैं? ये तीनों के पहले एक चीज करते हैं, that is unproductive work, time waste. हम अपने मन को बहलाते हैं, बस मन को क्या अच्छा लगेगा हम वो करते हैं. हम ये नहीं सोच रहे कि दिमाग ये कह रहा है तुमको कि भाई your time is very much important. You invest it particularly at that time of that period, right? If you are a good focused person, or so you can be more of multitasker. अभी इसमें एक स्टोरी सुन रहा हूँ. Yes. हनुमान जी, his like he is the actually Superman. सबको पता है कि रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि. तुलसीदास का भी एक वर्जन है वाल्मीकि. हमें पता है वाल्मीकि ने लिखी हुई है रामायण. इज द ओल्डेस्ट वर्जन भी है. बट डू यू नो उससे भी एक ओल्डेस्ट वर्जन था, दैट इज रिटन बाय हनुमान जी. What has happened one day? Everything has happened. राम ने शरयू नदी में अपना ये ले लिया था, समाधि ले ली थी, जल समाधि. Everything has happened. Then the thing were going कि someone was there, like everyone was doing everything. So उसमें वाल्मीकि has written his रामायण. वाल्मीकि ने अपना रामायण लिखा. And he has gone to validate that thing to नारद. नारद के पास हो जाते हैं. नारद को बोलते हैं कि नारद जी मैंने रामायण पूरा लिखा है. You see how it is. If there is something, ifs and buts, you suggest me, I will do it. Because Narad is also very good as an orator. He was good. बहुत अच्छा कवि था वो. तो वो अच्छा, he was knowing the things. तो बोले ठीक है. तो वो पढ़ने बैठता है. तो वो पढ़ लिया उसने पूरी तरह से अच्छे से. तो ये तो सब ठीक है, बट इससे अच्छी मैं रामायण पढ़ गया. तो बोला कि हाँ तो किससे? He gets just कि इससे अच्छा और कौन लिखा? He felt little jealous. So तो बोले कि नहीं, मैं अभी पढ़ के आया हूँ. हनुमान ने लिखी हुई है. तो there are certain reference कि तुमने छोड़े हुए, वो रेफरेंस तुम उसके पास से जाके लेके आ. तो he also got curious कि चलो मेरा तो ठीक है, मैं भी उसने जो लिखा I should keep it in my रामायण so that it will be more flourish. और फिर बहुत सुंदर दिखेगी, बहुत सुंदर हो जाएगा. तो he goes to हनुमान, और हनुमान जी बड़े बड़े 4 केले के पत्ते के ऊपर ये वाले नाखून से रामायण लिखते. ये वाले नाखून है उससे वो रामायण लिख लेते, पूरा लिख के हो जाता है उनका. तो वाल्मीकि जाता है उनके पास. He said, dude, you have written some Ramayana story, so let me see how exactly. So he said, okay, I have just updated, you see it. तो वो जाते हैं, वो देखते हैं. तो पढ़ते पढ़ते he just वो रोना चालू करते थे कि यार इतना सुंदर है और इतना पूरा रेफरेंसेस इसमें है, इसके सामने तो मेरा रामायण एकदम तुच्छ है. ऐसा वो he started feeling that. तो then he speaks to हनुमान की. हनुमान को कि you are the now कि तुम्हारा जो रामायण है उसकी वजह से कोई मेरा रामायण अभी पढ़ेगा नहीं. तो he just बाउंड मीन्स उसके पैरों पे गिर जाता है. तो वो क्या करते हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड से चारों पहले के पत्ते से क्रश कर देते हैं. इसे कि फॉर नोइंग मी देयर आर डिफरेंट रेफरेंसेस पीपल वुड बी हैविंग. फॉर यू द थिंग्स इज ओनली वन, इज द रामायण.
Yes, sir. So Hanuman was, we are knowing for many reasons, right? So he is very much focused as a personality. Hence he was having all the references. उसके पास सारे references हैं. उसके राम जी के जन्म से लेके मृत्यु तक सारे रेफरेंसेस उनके पास थे, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर रामायण लिख पाया, राइट? चलिए आगे बढ़े. फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है इसका मतलब? मतलब अपनी कंफर्ट जोन से छोड़कर के कोई वर्क किए देन This is multitasking is not flexibility. What else do you think about flexibility? Adaptability. No, adaptability is something different. I'll tell you how exactly later on. Because it's there in my list. Flexibility. You can deliver, you can do working. Yes, correctly. He took it very perfectly. Who else? माझं रोजचं काम आहे ना ते मी बाजूला ठेवून काहीतरी वेगळं दिलं करायला. जनरली बॉस ऐसा करता है, मेरा बॉस तो हरदम करता है, 6:15 बजे मुझे काम देता है, मैं रख के करके जाओ. It's not like that, but sometimes it happens. Like he gets the order from HO, then ये डेटा अभी तुरंत भेजो. तो similarly it happens to we have to do that. नाइट शिफ्ट में आना पड़ता है, जनरल शिफ्ट में आना पड़ता है, सेकेंड थर्ड शिफ्ट में आना पड़ता है, कभी कभी बाहर जाना पड़ता है, कहीं और लोकेशन पे जाके काम करना पड़ता है. इट्स ऑल फ्लेक्सिबिलिटी. एंड व्हाट डज इट मीन? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एक्सेप्टिंग द फ्लेक्सिबिलिटी. एक्चुअली मीन्स ये नहीं है कि अरे यार ये क्या है बॉस, मुझे ही बताता है, मुझे ही बोलता है, मुझे करने के लिए बोलता है, खुद तो करने से होता नहीं है. ऐसा नहीं है. ऐसा व्हाई दिस पीपल आर टेलिंग इट टू यू? ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस को नहीं आता है, बॉस को आता है ये सब करना. बट व्हाई इज टेलिंग इट टू यू? ही डजंट हैव टाइम टू डू दैट जॉब, राइट? जैसे हम घर में कोई बड़ा फंक्शन रहा तो हम खाने के लिए बावर्ची बाहर से बुलाते हैं. इसका मतलब ये तो नहीं घर की माँ या फिर औरतों को खाना बनाना आता, सब कुछ है उनको, बट दे डोंट हैव टाइम टू डू दैट बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग एल्स दैट टाइम. दे वांट टू रिसीव इट guests, receive a guest, talk to them, enjoy entirely thoroughly, or maybe any other work, right? So flexibility is all about accepting the flexibility. It's not only flexibility. I should accept it happens. तुम जा रहे हो, तुम्हारा you have a movie at 7 o'clock and 5:30 you are leaving from the office and suddenly your boss is saying कि अर्पित यार 2 मिनट में काम है, ये ईमेल करके दो. You feel तुमने कंप्यूटर लॉक कर दिया है. Then you have to open the computer, 2 मिनट का मेल, 3 मिनट प्रूफ रीडिंग, सेंडिंग के बाद फिर बंद करके पंच करके निकलना है. Then again parking, then again lot of. But then you have to sometimes adjust the things. यही फ्लेक्सिबिलिटी और यही लाइफ है. ऐसा कभी नहीं होगा तुम कितना भी जीएम, सीनियर जीएम, प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट बन जाओ, ऊपर का जो बॉस रहेगा ना वो कुछ भी बताएगा टाइम पे. जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर. मेरे जो कंपनी के जो साइट है मिस्टर गौतम पारिक इज अ प्रेसिडेंट साइट हेड ना, वो रात में 2 बजे भेजा हुआ मेल भी 2:05 पे आंसर करता है. डज ही स्लीप और नॉट? दैट इज अ क्वेश्चन फॉर अस. वी आस्क्ड हिम, मैंने बहुत बार पूछा उनको, आप सोते कि नहीं सोते? सर मैं सोता हूँ अर्पित, बट वो क्या बोलते कि आई हैव मेड माई सेल्फ टू बी रिलैक्स और टेक अ ब्रेक व्हेन देयर इज नो वर्क. यानी वो ऑफिस टाइम पे भी थोड़ा देर सो लेते हैं, क्योंकि उनका तो दिन भर ऑफिस ही है. सवेरे 6 बजे अगर कोई बैच अटकी है तो 6 बजे उनको फोन आता है तो वो उधर वहां से फोन पे बताते नाते. He is that shop, he is on that position, he is earning that money also. Understood? Yes. So flexibility works like this, okay? Do you understood, guys? Yes. What is adaptability? What is the difference between flexibility and adaptability? सर अडेप्टेबिलिटी मतलब जो नया है उसको मतलब ये Learn करना ability. It's adapting, taking it.
right? Like flexibility, it's all about. It's depend on the situation rather, or rather it is external, बाहर से. Adaptability it's internal. You have to learn it. You have to take it in. Like नया कोई स्किल सेट है तो मुझे आना चाहिए. मुझे कुछ एक्सेल का नहीं पता तो मुझे समझना चाहिए. मुझे मैं अगर लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे वो आना चाहिए. You got my point? Yes. So adaptability is learning, understanding faster. That is the adaptability. Adoption, adopting, correct? Adapting. Understood now? Yes. I have a story on this too. Let's discuss later. Communication. On this, I have spoken many times, but still I would like to talk to you again. Communication is very, very much vital. If you are really not good at communication, try to speak with people. लोगों से बात करिए. If you are not conversational, अगर आप बात करने लायक नहीं है तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे. Think to understand. और देखिए हमारे टीम में भी ऐसा होता है. हम 4 लोगों की ग्रुप में एक करता था, बहुत साइलेंट रहता है. ऐसे नहीं होना चाहिए. So communication is very much important. We should able to encode a right message. We should decode a right message. We could able to understand the same message. We should use a proper language to communicate that thing to a other person. Right? Yes, sir. You agree, guys? Yes, sir. ये कोई मुझे अगर ये बोलेगा कि we are into 21st century now. Everyone is having a smartphone in hand. If someone says that I'm not good at English, somehow I'm really sorry then. Before taking the phone, you should learn the English then. Your parents have invested on your phone. Before that, they should invest on your coaching of English. I somehow feel that. If nothing, you please, if you really have a fear, who has the fear to speak in English? बड़ा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं भी एक जमाने में बहुत घटिया अंग्रेजी बोलता था. ओके, नो प्रॉब्लम. सी देयर इज बहुत टाइम है हमारे पास. देयर आर लॉट ऑफ एप्स आल्सो. हेलो इंग्लिश करके एक ऐप है. दैट इज वेरी गुड ऐप. वो यूज करिए आप. अगर नहीं, इफ यू डोंट वांट टू डू वन मोर थिंग. सबके मोबाइल में कस्टमर केयर होता है. हाँ, कुछ भी काम से फोन लगे कस्टमर केयर. सही है. आई टेल यू, कोई भी काम से दे स्पीक गुड इंग्लिश. और चूज दैट वन आंसर. 1 2 3. अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाए. टू स्पीक टू इन इंग्लिश 1. हिंदी में बात करने के लिए 2 दबाए. मराठी बोलने से भी 3 दबाए. यू शुड डू इट फर्स्ट वन. दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड स्टार्ट टू स्पीक वॉट एवर इंग्लिश डू यू. I'm telling you, it's a fact and I have done that. Whatever English you know, you use that. I used to speak 40-45 minutes. तो फ्री था उस जमाने में. I don't know, अभी शायद चार्जेबल है. पर चार्जेबल भी it's not chargeable. I think 1000 मिनट कुछ फ्री रहता है. I don't think it's chargeable. तो मेरे घर में होता था एक इंटरकॉम था. टाटा का क्या नाम था? नहीं, छोटा सा था ऐसा. टाटा इंडिकॉम था क्या नाम? ऐसा छोटा सा. तो वो था मेरे घर में. तो आई यूज्ड टू डू लाइक 45-50 मिनट. मम्मी बोलती थी क्या कर रहे हो तुम? ये आके झगड़ा ही तो करते हो. बट दैट आई टेल यू, वही मुझे हेल्प किया. फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे वही चीज हेल्प किया कि टू ग्रो माई इंग्लिश. Second, I made the Malli friends. Malli friends is Malayalam, Keralites. मैं जब पुणे में था तो मुझे तभी भी डर था कि मुझे अंग्रेजी तो अच्छे से आती है. हाउ आई लाइक सेल्फ राइट. तो मेरे रूम में ना सारे केरलाइट्स थे. भगवान की कृपा से समझ लो.
I used not, I were feeling so uncomfortable with them because everywhere coconut smell, that banana smell, and then they were into a lungi, and if we speak something in Hindi, they used to laugh because there are certain words in Hindi, the meaning of that words in their language is something else. That I don't know, but they used to speak like that. So मैं सीरियस इसका कभी मैं समझ नहीं पाता था why these people are laughing. So but still they were not knowing Marathi there and Pune is like basically मराठीतच बोला. तर त्यामुळे त्यांना तिथे मराठी त्यांना येत नव्हतं, त्यांना हिंदी पण येत नव्हतं, आणि मला इंग्रजी येत नव्हतं आणि मला मराठी हिंदी दोन्ही येत होतं. सो whenever I used to go with them for a shopping, they used to take me actually because for buying a banana they need me. और मैं वहाँ रहता था उटांडे मारुति बोलने की जगह है वहाँ पे रास्ता पेड़ कर वहाँ रहते और साउथ इंडियन पीपल का ही सोसाइटी है. थोड़ा बाहर जाना हो उसके तो देन यू शुड नो गुड मराठी, अदरवाइज आपका तो खैर नहीं पूरी. वही था कि मेरे को उनको फिर वहाँ पे समझाना पड़ता था. ही इज सेइंग इट इज ए गुड क्वालिटी, देन द फैब्रिक इज डिफरेंट, देन दिस इज एक्सपेंसिव, दिस इज नॉट. तो ऐसा सारा मुझे उनको समझाना पड़ता था. सो दिस टू थिंग्स हैज हेल्प्ड मी लॉट. वन इज दैट इंटरकॉम वाला एंड द अदर इज right. See, basically English, you can learn corporate English very fast because the dictionary is very less, corporate words are very less. But when you talk non-corporate thing or maybe generic talk in English, then your English builds up very fast. मीन्स मेरे कहने का मतलब है जो हम पुस्तक या किताब में से जो पढ़ते हैं एकेडमिक या फिर कॉर्पोरेट, उनका लैंग्वेज फिक्स होता है. मैं अगर मेल लिखूंगा तो मेल में थोड़ा एज डिजायर आई एम अटैचिंग दिस फाइल एंड सो इट इज वेरी पर्सन. इस सिंपल जो फॉर्मेट रिगार्ड्स अर्पित रावत ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट्स होते हैं अपने 4-5, वही हम एक आध 2-3 लाइन इधर उधर चिपका के अपन आगे करते हैं, राइट. यही हम करते हैं अपने ईमेल्स में. But if you talk about non-corporate, when you talk with your friends or something, that time we feel difficulties. We don't know the word for a simple thing. Sometimes we, उस दिन कौन सा था? Chestnut. Chestnut यानी क्या होता है? सिंघाड़ा. सिंघाड़ा. तो I have actually that first time पता चला मुझे. Then custard apple. Sorry, stone apple. स्टोन ऍपल यानी जे कवट असतं म्हणजे चटणी म्हणतात त्याला स्टोन ऍपल म्हणतात. सो आय समटाइम फील अमेज्ड अँड आय रिली रीड देन सम पीपल की याला काय म्हणतात. माझ्या फ्रेंडने आणलं होतं डब्यात की कवट्याची चटणी, मला इंग्रजी काय म्हणतात. द क्वेश्चन कम्स देयर. सो दॅट्स व्हॉट व्हेन यू डू इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन or rather not with your academic or corporate things, then your English builds faster, right? Yes. So it's all about English. Now we'll talk about other languages, Hindi and Marathi. See, again I tell you, these two languages are also very important. Then one is your local language and your mother tongue language. Why? See, when you grow up, no, जितना आप बड़े होते हैं ना, तब ये अंग्रेजी काम नहीं आती. अंग्रेजी तो अच्छा आई जाएगी तब तक आपको तब ना मदर टंग और वो जो आपकी वहाँ की लोकल लैंग्वेज ज्यादा काम में आती है. क्यों? लोग अंग्रेजी में बहुत अच्छा झूठ बोल देते हैं. यू कैन वाइप आउट एवरीथिंग विद इंग्लिश, बट इसेंस है ना वो मराठी या हिंदी में बहुत अच्छे से पता चलता है. जिसे अगर हम बोलते हैं, if let's say a person is interviewing to, you don't have a capacity to get that salary. ये अंग्रेजी में बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में. अरे मैं हिंदी बोलूं, अरे भाई तुम्हारी औकात नहीं है. How you got it? The essence. You got it about essence. So hence, जब मैं हिंदी में बात करूं तो मेरा पूरा प्रयास होना चाहिए कि मैं सारे शब्द हिंदी में बोलूं. वैसे भी मराठी में
जर मी मराठीत बोलतोय तर अस्खलित मराठी बोलता आलं पाहिजे, एकही इंग्रजी किंवा दुसऱ्या भाषेचा शब्द नसताना, आणि इतकं स्टँडर्ड असलं पाहिजे की मी आज जर इथे बोलतोय नागपुरात तर ते कोल्हापूरच्या माणसाला समजलं पाहिजे, लातूरच्या माणसाला समजलं पाहिजे, कोकणातल्या माणसाला समजलं पाहिजे. सिमिलरली हिंदी भी, अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरा हिंदी यूपी वाले जो भैया है उनको भी समझना चाहिए, मेरा हिंदी साउथ वाले जो अन्ना है उनको भी समझना चाहिए. Right? That's what. Only English is not important. All the languages are important. Try to focus or give your 20-30 minutes on your language, any language. Why? It's only the medium to communicate. ये अगर अच्छा होगा ना तो वो हम अच्छे से बता पाएंगे. बहुत बार मैं देखता हूँ लोग ना एक बहुत बड़ा गलती करते हैं. मी सांबार वडी खाल्ली ती खूप सुंदर होती. अरे सुंदर कशी असू शकते सांबार वडी? सांबार वडी स्वादिष्ट असू शकते, चविष्ट असू शकते, टेस्टी असू शकते, सुंदर नसू शकते. ती काय मुलगी आहे? यू गॉट द थिंग? यू शुड नो द वर्ड बेसिकली. सुंदर हे एक विशेषण आहे आणि ते विशेषण त्याच ठिकाणी चांगलं दिसेल. चित्र सुंदर आहे, कोट मिनिंगफुल आहे. कोट पण सुंदर नाही आहे, कोट मिनिंगफुल आहे. करेक्ट? यू गॉट इट? मुलगी सुंदर आहे किंवा रांगोळी सुंदर आहे. यू गॉट माय पॉइंट? सो यू शुड नो द राइट वर्ड, वेर आय शुड यूज राइट वर्ड्स. बिफोर दैट यू शुड नो द वर्ड्स. करेक्ट? That's what my submission to tell you is. It's all about right communication. You know encoding, decoding and all? Or shall I tell you? चलो बताओ. ये communication में है. Communication is a two-way process. एक होता है communicator, एक होता है receiver, है ना? जैसे हम टेलीफोन, बाकी तुमने भी पढ़ा होगा ये लैंग्वेज में, बट ये जैसे तुम्हारे इसमें सिंटैक्स होता है. करेक्ट? एक लॉजिक होता है. लॉजिक क्या होता है? दिमाग में होता है ना? तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज आई हैव सम आइडिया और लॉजिक दैट आई हैव टू एनकोड इट इनटू अ लैंग्वेज और सिंटैक्स सो दैट इफ इट विल गो टू अ पर्सन ही शुड रिसीव इट करेक्टली. करेक्ट? अगर मेरे सिंटैक्स में पंक्चुएशन एरर रहा तो उसको वो सही समझेगा क्या? नहीं ना. एक था क्या, अभी मुझे याद नहीं आ रहा. आई हैव द वन एग्जांपल दैट लाइक यू शुड नो द प्रॉपर पंक्चुएशन, यू शुड नो द प्रॉपर सिंटैक्स. व्हाट लॉजिक, व्हाट तुमने जो सोचा है वही तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्या, या अगर तुम्हें समझ रहा है क्या, उसमें अगर गैप्स है तो उस ढूंढो कि क्यों वो गैप्स है. ऐसा होता है अपने सर कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं बता नहीं पा रही हूँ. आई एम एबल टू विजुअलाइज बट आई एम अनएबल टू पश्यंती. म्हणजे मैं देख तो पा रहा हूँ कि मुझे क्या बताना है. आई एम एबल टू विजुअलाइज बट आई एम अनएबल टू स्पीक. होता है ऐसा अपने सर? ये मैंने पिछले इसमें बताया था कि क्लास में, ये वाले क्लास में बताया परा पश्यंती, ये बताया था कुछ? हाँ नहीं ना. थोड़ा देर आर टू प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. वन इज इंडियन प्रोसेस एंड वन इज वेस्टर्न प्रोसेस. तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट वेस्टर्न प्रोसेस, व्हाट इट सेज, देन वी कम ऑन द इंडियन प्रोसेस. Is that okay with you? Yes, sir. Are you comfortable with this, right? Yes, Or sir. anyone is having यार ये बहुत ही ब्राह्मण तो नहीं है. I am not Brahmin basically. That's what. But I like to read, so I generally have these all references with me. Okay. पहला है लॉजिक या थॉट. दिमाग में पहले थॉट आना जरूरी है ना. लॉजिक, जिसको बाद में हमें एनकोड करना है. ठीक है? एनकोड के बाद डिकोड करना है और इसके बाद
इसमें सेंड आता है, ठीक है। यही है कम्युनिकेशन। Yes, sir. पढ़ा होगा ना कॉलेज में होता है। तो लॉजिक होता है, लॉजिक को हमें सही भाषा सही शब्दों में अपने दिमाग में फ्रेम करना है, उसको भेजना है। भेजने के भी तरीके होते हैं, जैसे ईमेल से भेजेंगे तो ईमेल वाला हम भेजेंगे, मुंह से भेजना है तो मुंह से, लिखना है तो लिख के भेजेंगे, जैसा कुछ है। सेंड, कबूतर से भेजना तो कबूतर तो वो जाना भी चाहिए कबूतर उसके पास, करेक्ट। डिकोड और इंसान ने वैसे समझना भी चाहिए, करेक्ट। जैसे देयर आर लॉट ऑफ वी कैन से many people many companies does it, that encryption पता है ना? Yes, sir. The message goes with a different language, then they decode it and then they get it as per their wish, right? So similarly ऐसा बहुत पहले के जमाने में कुछ तो भी लिख के डालते थे कीवर्ड्स, then वो भेज देते थे, फिर बाद में इसका मतलब अरे यहाँ पे जाके सवारी करनी है या फिर यहाँ पे जाके मारना है, ऐसा मैसेज जाता था, करेक्ट। जैसा वो इसने किया था धजामा, पता है ना, इसने किया था धजामा, आनंदीबाई पेशवा। हाँ, उन्होंने नाना साहेब पेशवे को, ये स्टोरी पता है नहीं पता? चलो ये भी स्टोरी सुनाता हूँ। पेशवास क्यों खत्म हुए? वो उनके खुद के झगड़ों से ही खत्म हुए। Why they had been they fought with each other itself. तो बाजीराव पेशवा हमने सुना है सबने? Yes, sir. उनका नाम गलती से या गलत जगह के लिए ज्यादा लिया जाता है मस्तानी, बट ही इज द वन ऑफ अ गुड वॉरियर। ही हैज done almost 42 wars and that is he वो एक भी वॉर अरे नहीं, ठीक है। तो दे हैव अ किड, उनके बच्चे, तो उनके बच्चे में उनको हुए Vishwasraw's father is Ballarao. Then Raghova Dada, and then third is there is third is a cousin brother. Okay, so ये Raghova Dada and the Vishwasraw father are the brother. ठीक है, तो Vishwasraw, Narayan Rao and Madhav Rao, they are the three brothers. ये उनके पापा का नाम नाना फडणवीस में, नाना पेशवास। तो नाना पेशवा के जो भाई है वो है राघवा दादा, उनकी वाइफ सेकंड वाइफ इज आनंदीबाई। तो वो क्या करती है, यहाँ पे तो सब मर गए, नारायण राव मर गए हार्ट अटैक से, क्योंकि उनके विश्वासराव पानीपत का युद्ध हुआ तो वहां पे वो मर गए थे, और उनका भाई कजन ब्रदर भी मर गया था। उसके बाद माधवराव पेशवे के हाथ में गद्दी आई थी, तो माधवराव पेशवे को कैंसर हुआ था, तो वो थेऊरचा गणपती है ना, तिथे मरण पावले, रमाबाई आणि माधवराव। तो उसके बाद उनकी जो मदर थी नाना राव की पेशवे की भाई गोपिका भाई, वो क्या करती है, छोटे जो बच्चा रहते नारायण राव, उनको गद्दी पे बिठा के वो राज करती है। तो 15-17 days happens and later on वो उनको पसंद नहीं आता उनके भाई को, तो व्हाट उसकी जो, तो वो क्या करते हैं कि he wants to put them into a jail and खुद राज्य करना चाहते हैं। बट उनकी जो वाइफ है राघवा दादा की, आनंदीबाई पेशवे, तो वो क्या करती, नारायण रावाला धरा, धसा नहीं करते मारा, तो उसके वजह से वो उसको एकदम मार देते, काट के मार देते। तो तभी भी अगर आप अभी भी चाहते हैं तो वहाँ पे स्टोरी सुनाते हैं, पेशवा का जो वाडा है शनिवार वाडा, तिथे गेल्यावर अजूनही पेशंट तिथे आवाज येतो, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा असं म्हणतात की तिथे अजूनही आवाज येतो। ही स्टोरी आहे बेसिकली, म्हणजे ते एनक्रिप्ट केलं होतं त्याला, सॉरी एनक्रिप्ट नाही, त्याला काय केलं होतं, डिक्रिप्ट नाही लिहिलं ते करेक्ट होतं, पण त्याच्यामध्ये चेंजेस केले होते, सो इट वॉज माल फंक्शन. So you got it? So this is all about the encoding and decoding. Okay? And the message it goes with the language what you want to further communicate. इंडियन कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले परा आता है, दूसरा आता है पश्यन्ति,
तीसरा है मध्यमा, चौथा है वैखरी। ये 4 स्टेप्स है एज पर इंडियन कम्युनिकेशन। परा मीन्स व्हाट? इच्छा होना। मेरी इच्छा तो होनी चाहिए बात करने की। आई शुड हैव लॉजिक टू टॉक, आई शुड हैव समथिंग टू स्पीक। इच्छा होणं. परा आपल्याकडे म्हणतात परावाणी म्हणजे पोटात असते. त्याच्यावर एक स्टोरी आहे, सांगू? बहिणाबाई चौधरी, बहिणाबाई चौधरीचा मुलगा, त्यांचं नाव आहे सोपान चौधरी. एक दिवस ते खूप घाणेरडी शिवी देतात त्यांच्या आईसमोरच. तर ते धावतात की आता आईला मारते आपली, मग ते धावतात. त्यांची आई त्यांच्या मागे ना चुलीतलं कोळसा काढते, चुलीतलं लाकूड काढते गरम गरम आणि त्याच्याजवळ जाते. सोपानला वाटतं, सोपान चौधरीला वाटते की ती आता येईल आणि माझ्या तोंडाला जाळेल. आता मी या तोंडातून काढलं तर ते तोंड असं बंद करून उभं राहतं. बहिणाबाई चौधरी त्यांचं शर्ट वर करते आणि पोटाला चटका देते आणि म्हणते की जे पोटी तेच पोटी, आहे की नाही? तर म्हणून आपल्याकडे म्हणतात की परावाणी ही श्रेष्ठ आहे, पोटात असते. तर म्हणून आपली जी इच्छा होणं जे आहे ना ते पोटातून असतं. पश्यंती, अगेन विजुअलाइजेशन. मैं जो सोच रहा हूं, and am I able to visualize it? Am I able to see it? Am I able to see that picture? What I want to say to the further, communicate further with you people? You got my point? Yes, sir. जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं खुद को विजुअलाइज कर पा रहा हूं? समझ में आया? Yes, sir. तीसरा है मध्यमा. मध्यमा में ये बोल रहा है इसका सही में जरूरत है क्या बात करने का? Will it be really required to talk? या चेक कर लो. मध्यमा इज व्हाट? चेकिंग. जो तुमने सोचा है, जो तुमने देखा है, वो सही में करेक्ट है क्या, या फिर उसका पंक्चुएशन चेक कर लो, उसमें से ग्रामेटिकल एरर हटा दो, जो हम करते हैं प्रूफ रीडिंग बिफोर सेंडिंग, राइट? हम करते हैं ना मेल. मैं तो हर बार मेरा मेल देखो रही यार, मैं तो लिखना भूल ही गया, ऐसा हो जाता है ना. अटैचमेंट करना ही भूल गया. हम देखते हैं क्या मेल में? वो सब देखना है मध्यमा में. ये तब देखना है हमें बिफोर. वैखरी म्हणजे जीभ, वैखरी. मुंह से निकालने से पहले हमें ये सब चीजें करना है. पहले थॉट आना है दिमाग में, उसके बाद उसको विजुअलाइज करना है कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो हमारे दिमाग में हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं क्या. उसके बाद उसको करेक्ट है आर्टिकुलेट या फिर उसको प्रॉपर टाइप एनकोड कर रहे हैं क्या, और उसके बाद उसको मुंह से निकालना. मुंह से निकालने के बाद वापस नहीं आता, अरे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना. सो दिस इज ए communication. You got my point? Yes, sir. Any doubt on this? No, sir. Is it really interesting? Yes, sir. Sir, is it Sanskrit word or Marathi? It's all Sanskrit. Para Pashyanti Madhyama Vaikhari. It has the same process of being silent. You got my point? Yes, sir. जैसा हम ये कम्युनिकेशन का यहाँ से नीचे है, वैसा इससे उल्टा है साइलेंस. ठीक है, वो अभी आपको जरूरत नहीं है. दैट विल हेल्प यू वंस यू विल बिकम 35-40. जरूरत है क्या बात करने की, ये जो चीज है ना, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन. तो ये जो मध्यमा इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेकिंग your grammar, your punctuation, your attachment, your language, your medium actually. Hence it is called as madhyama. And से ये मैं अपने दिमाग से नहीं बता रहा हूँ, ये सांदीपनी का प्रोसेस है कम्युनिकेशन. इट्स नॉट माई प्रोसेस. श्री कृष्ण के जो गुरु है ना, ये उनका प्रोसेस है, ठीक है ना. तो ये मैंने डिराइव किया हुआ नहीं है. और इट्स ऑल वी लर्न इनटू इंग्लिश क्लासेस, एंग्लो इंडियंस एंड कम्युनिकेशन, ये उन्होंने सिखाया हुआ है, ठीक है. एंड बोथ आर द मीनिंगफुल. आई फाउंड इट इज मोर मीनिंगफुल.
you take as per your wish. Okay, so moreover on communication can is over now. Yes. So how it is important, do you understand? Yes, sir. Presentation. Presentation, I am not talking about PPT or PowerPoint. Here the presentation is what about? In all the sense. Like when you are into a meeting, how you are sitting, how you are showing the interest. तुम ऐसे बैठ के ना बोल दो, हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, बता दे, ऐसा होता है ना बॉस के साथ। एक अपना कलीग रहता है ज्यादा ही होशियार, ये तो आगे आगे ही करता है, तो बॉस की पूछे इतना भी हो जाए, बॉस तो इसमें अच्छा हो जाए, ऐसा लगता है ना अपने को। बट समटाइम्स यू आल्सो हैव कंटेंट। वो चश्मा निकाल के एज अ एनालाइजर करके चश्मा पहन के देखिए कि कुछ तो कंटेंट होगा इसके बाद में। लेट्स सी व्हाई बॉस वांट्स टू टेक हिम ऑल द वे, व्हाई बॉस वांट्स हिज सजेशन ऑल द वे देन अस। देयर मस्ट बी समथिंग, इसमें कुछ तो होगा अलग, वो हमें देखना है। प्रेजेंटेशन स्किल व्हेन वी टॉक अबाउट, the people are sitting around you and they should feel you're presenting or you're evolving into them, into your discussion. It's all about presentation skill. You should feel to participate in my discussion. That is the presentation skill. अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो presentation is just a reading a book, correct? तुम्हें लगना चाहिए कि मैं participate करूं, तुम्हें लगना चाहिए कि मैं इसके साथ डिस्कस करूं ये चीज पे, ये प्रेजेंटेशन होता है, करेक्ट? Yes, sir. It's not only discussing and presenting, it's all many. I mean, when you go as a company employee, if you are representing a company, you should wear a decent clothes. If you are going to you are representing any organization, you should look a decent only. वहां पे तुम कुछ तो भी पहन के चले गए, अरे व्हाट इज दिस, ऐसा नहीं होता है। यू आर इनटू कंपनी का आई कार्ड पहन के दारू पी रहे, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ वेल। वही तुमने फेसबुक पे डाला यार आई एम जस्ट हैविंग वन इन गोवा, दैट्स व्हाट यू शुड थिंक। उसमें उसके उस समय हमें समझ है कि मैं मेरा रोल करके मेरे जेब में डाल दूं, then I should be. No one is telling you to not to have fun, but then you should understand what is the presentation, how exactly you are showing. सामने वाले को लगता है ये तो पीस के हैं, दारू पी रहे हैं, बाकी लोग कैसे होंगे? हाँ होता है, सोच बनती है लोगों की। You are what you are showing, it is a presentation, correct? Similarly, handwriting. जे 1200 दुका एका पानावर असतात, गलतियां रहती है, 1200 गलतियां रहती है, ऐसे कोड तोड़ एकदम काला नीला करून, whatever paper presentation you are making, you should be legible to read. बहुत लोग डायरी मेंटेन करते हैं ऑफिस में, मैं भी करता हूँ। हमको ये लगता है कि हमारी डायरी किसी ने नहीं पढ़नी चाहिए, even I feel I actually write, I compose poems. तो मैं अगर कभी मेरे मन में ऑफिस में आते आते एक दो लाइन सोचा तो मैं लिख लेता हूँ, but I somehow feel कि no one should read. It's my personal. But even though someone should take your diary, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। वो इतना कीचड़ माचड़ गंदा बंदा रहता है, it shows that how unorganized you are. बॉस तुम्हें बोलता है कि 4 फिगर्स लिख के आओ, तुम एक पेपर पे लिख के आते हो, उसमें करोड़ सीआर लैक्स लिखना ही लिख नहीं पाते, या फिर वो लिखने में मिलियंस बिलियंस इसमें हम अटक जाते हैं। वो समझना है हमको, मिलियंस यानी कितने बॉल्स होते हैं, राउंड्स होते हैं, बिलियंस यानी कितने होते हैं, लैक्स कितना होता है, 10 लाख कितना होता है। थोड़ा मैथमेटिक्स भी मुंह पे आना रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा ज्यादा नहीं, 15 तक टेबल लर्न होने चाहिए। इट्स लिटिल बिट एक्सपेक्टेशंस क्यों होने चाहिए, ये इट शोज हाउ मच फास्ट यू आर। ठीक है, यही थोड़ा फास्ट बनाता है आदमी को। तुमको अगर नहीं होंगे ना टेबल पार्ट, तो सही में बता रहा हूँ, वॉशरूम में ना
जहाँ बैठते हैं हम अपना मॉर्निंग का कार्यक्रम करते हैं, वहाँ सामने एक ना चिपका दो अपने हाथ से लिखा हुआ 1 से लेके 15 तक, बस पढ़ लो, उससे में हो भी जाएगा, इतने में वो भी हो जाएगा। आई टेल यू व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। जब बॉस बोल रहा है तो कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए वो कैलकुलेटर ढूंढ रहा है, इट शोज यू आर हाउ मच यू हैव टू डू। बॉस पूछ रहा है अरे कितना होता है, बता कितना हो रहा है, 200 प्लस 200, तो वो कैलकुलेट कर रहा है। थोड़ा आना चाहिए परसेंटेज। मैंने देखा बहुत लोगों को परसेंटेज निकालना नहीं आता है, समथिंग वेरी, मुझे चौथी पांचवी वाली चीजें हैं यार, ये तो अगेन बेसिक क्या है, बहुत लोगों को नहीं आता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, परसेंटेज, प्लस माइनस, डिवीजन आना चाहिए, मीन मोड एवरेज थोड़ा बहुत समझना चाहिए। हम एवरेज पूछ रहे हैं तो हम एवरेज कुछ तो बनता ही बताए, थोड़ा आजू बाजू होना चाहिए एवरेज। अगर हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं तो 70 और 80 का एवरेज क्या आएगा, 75, करेक्ट। मैं 80 बोलूंगा तो क्या होगा, दूर हो जाएगा ना, चलो मैं 76 भी बोला, तो इट शुड बी नियर बाय। तो इससे समझ में आता है हाउ मच यू आर एज ए पर्सनालिटी, हाउ मच फोकस्ड यू आर एज ए पर्सन, करेक्ट। You are getting what I am talking about. So presentation is all about how you want to show people. जैसा हमारा फेसबुक में जाते हैं हम, अगेन ये भी यार देखो, अभी सोशल मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ, खुद का ही सोशल मीडिया पे अपना पेज कैसा दिखता है देख लेना। हम लोगों को कमेंट्स करते हैं बहुत, हम लोगों को बहुत टॅग करते हैं, लोग भी हमको टॅग करते हैं, कसले तरी आडवे तिडवे केक लावलेले फोटो लावतात लोक, कुठल्या तरी सोशल ऍक्टिव्हिटीचं कोणीतरी काहीतरी दान करतं, 40 लोक तिथे टॅग असतात. व्हॉट इज दिस? शुड रिमूव्ह युअरसेल्फ, शुड सी हाऊ एक्झॅक्टली हाऊ आय वॉन्ट टू शो माय सेल्फ एज अ पर्सन, हाऊ आय वॉन्ट टू show to you as how I am. So that is in your hand. If I want you to know me as a socialist, then I should do something like that. If you should know I want you should know me as a knowledgeable person, then I should do something like that. So as a good human being, I should do something like that. So that's what. तुम्हें क्या दिखाना है वो तुम्हारे हाथ में, तो वही चीज आपने शो करना है, करेक्ट? Yes, sir. Decent person, I'm talking this on more decent. See, I don't mind making tattoos. मुझे भी ऐसा है ना, मैंने भी बताया, छोटे मीन्स मेरी वाइफ को अच्छा लगता है इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं था. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मेकिंग टैटूज और समथिंग, बट इट शुड बी डिसेंट. देख के म्हणजे बघितल्यावर पिळस नको यायचं. मी पाहिले लोक इथे करतात, इथे करतात, हा क्या दिखाना है हमें, यहाँ 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 ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स नॉट आई एम नॉट, मैं उनका बिजनेस नहीं खाना चाह रहा. मेरा कहने का मतलब ये है, बाय डूइंग दिस इज दैट यू आर लुकिंग डिसेंट, दैट यू थिंक फर्स्ट. बाय डूइंग टैटू यू आर फर्स्ट चीज तो आपको गवर्नमेंट जॉब तो आप पहले अपने से निकाल रहे हैं, ये आप ध्यान करें. इट्स ओके, नो वन वांट्स टू डू दैट. जिसको नहीं करना, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना था, इसलिए आई ऑप्ट फॉर कॉर्पोरेट जॉब. सिमिलरली इफ समवन वांट्स टू डू इट, बट अगेन कुछ चीज का मीनिंग होना चाहिए. करो टैटू, मीनिंग है क्या उस चीज का, देख लो आपके प्रति किस चीज, उस चीज का कोई मीनिंग, कोई भगवान का नाम हाँ होगा उसका मीनिंग, शिव जी है, आई अग्री. मैं किसी के बिलीव्स पे आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक ऑन. मेरा भी बिलीव है, आई जस्ट वांटेड टू शो माय वाइफ दैट आई एम हाउ मच आई लव. दैट इज माय बिलीव्स. प्रोबब्ली आई माइट बी सक्सीड और आई माइट नॉट बी सक्सीड, राइट. बट कुछ भी चीज का अतिरेक मीन्स वो ज्यादा किया ना हमने तो अच्छा नहीं, करेक्ट. मैंने देखा यहाँ पे मीन्स क्या बोलते हैं, काय दाखवायचं आहे, व्हॉट यू वॉन्ट टू शो, क्या बिलीव्स है उसके, ये क्या बिलीव. वो हड्डी वाला अपना वो जो इसका साइन होता है ना, खतरे वाला मीन्स क्या, मैं तुमसे बात करूंगा यानी मुझे खतरा है.
हेयर स्टाइल्स, यहाँ पे ऐसा एक पूरा होता है और वो लीच होता है, जिसे हैन या कोमड़े का रहता है। सो व्हाट, सी मैन, whatever you have to give me chicken, then only I'll talk to you. It does mean that. See, I believe you should put tika, gandha, tikli. I agree. But it should be very decent. एकदम ते कोमलिका सारखे एवढं नको. किंवा ते एकदम से लाल लाल भडक भडक टिका शिवसेनाचा तसा पण नको. You are going for an interview, or rather, you are working in a community where people are there with a different community, different caste and religion. वो चीज को कभी हावी नहीं हो देना. रिलीजन, देव, ये अतिशय पर्सनल गोष्ट है. ये बहुत पर्सनल चीज है. I believe not in God, but it's so much personal. I believe in God, but वो मैं मेरे घर में करू. तुम्ही घरी जे करायचं ते करा ना यार. दिवसभर तुम्ही अंतर्वर्षाचे पाठ म्हणा, रामरक्षा म्हणा, दिवसभर तुम्हाला जे करायचंय ते करा. मी पाहिलं आता सर, आई शुड नॉट से दिस, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, हमारे ऑफिस में ट्रेंड बन रहा है फ्राइडे को नमाज पढ़ने जाने की. ऑफिस में आ रहे हो तो ऑफिस में एक ही धर्म है, कर्म. देयर इज नो अदर धर्म. We have allowed twice price when we have allowed, then we have stopped that. We said no. We are in office. Office is only for work. We are not celebrating any other things. We are only celebrating festivals, and all festivals we are celebrating. Eid also we are celebrating. We are celebrating Christmas, Guru Nanak Jayanti, everything. So accordingly we will celebrate. But तुम अगर नमाज पढ़ने के लिए वो बीच में बैठा था एक बार कॉरिडोर में, नो, इट्स नॉट अलाउड इनसाइड द कंपनी. यू आर कमिंग हियर फॉर वर्क, सो डू ओनली वर्क, राइट? सो धर्म इज वेरी पर्सनल थिंग. इट शुड बी एट होम. हनुमान जी का बड़ा सा लॉकेट, त्रिशूल, यू डोंट वांट टू शो, डोंट शो दैट. कीप इट यूजफुल, कीप इट. इफ यू फील यू हैव, मेरा तुम्हारा लकी चार्म है वो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका एग्जीबिशन मत करो, ठीक है? लड़कियां बिंदी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इंटरव्यू टाइम? आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू, नॉट अदर. इट्स अप टू यू. हाँ, छोटा टिकली लगाने में कोई हर्ज नहीं. इट शुड लुक लाइक ए सिंपल. यू आर फ्रॉम ए डिसेंट फैमिली, you believe on your ethics, your things, लगाने में कोई हर्ज नहीं. ईयर रिंग्स, इट शुड बी स्मॉल. ये 5-5 को लेकर ये कैसे वो 5 करते तो तुम्हारे कान की तरफ इसका ध्यान नहीं, कैसे नहीं करते, ठीक है? यू शुड बी वेरी मच डिसेंट. ऑफिस में जाके जस्ट यू वांट टू जस्टिफाई टू योर कलीग, देखो कितना हेवी है ना, ऐसे नहीं करते. गले में वो आजकल तो बहुत निकला है, मोटी मोटी चेन लोग पहन के जाते हैं. गोइंग इन ऑफिस, नॉट इन ए शादी फंक्शन or something. Then you will come up on dress. मैरून कलर का एकदम ऐसा प्रॉपर सलवार कुर्ता, जेवढं जरी मॉडल है. You understand? You are in office. You are there for work, not for fashion show. Again, I'm talking more on girls because there are a lot of options. Poncho top, tube top, boat neck, halt neck. There are many options you have, right? So you should understand what you should wear in office. Am I really here for work or something else? Try to understand first. If not, then you please judge yourself. You should be decent. मेरा पेट दिख रहा है. No, you're in office environment. Should not be. It should be covered. ठीक है, तुम कंफर्टेबल तो आगे वाला है क्या? You might feel something else there, right?
See, we talk more on about like guys should have the decency in their. I will come on that also. They वो भी नहीं जाएंगे मेरे इसमें से, but I am talking about girls now. So you try to understand. Wearing jewelries, it should be very minimal in when you are going in office. Small chain, छोटा सा मंगलसूत्र कुछ नहीं होता है पहन सकते, पर तुम ऐसे हेवी डाल के जाएंगे नहीं तो, क्योंकि हमारे खानदान में है भाई बड़ी हेवी करेंगे, इससे नीचे तो नहीं करेंगे ऑफिस में, ठीक है। फिर वो चमकी रहती इधर लिपस्टिक। Try to understand. You have to wear there is nothing wrong. Wear the normal. You should be comfortable. 8 घंटा उसमें रहना है। 8 घंटे में अगर तुम खाना भी खाना है उसमें लोगों से बात करनी है, you will be stressed out. बॉस कुछ बोलेगा तो पसीना भी आएगा, करेक्ट? स्ट्रेस आउट होंगे तुम, थोड़ा तुम हैप्पी होंगे तो यू मट बी, तुम्हारे और स्पेशल, तुम हंसोगे, तुम्हारा एक्सप्रेशन आएगा तो योर मेकअप शुड बी लिटिल लाइटर, राइट? अदरवाइज व्हाट विल हैपन, उसमें पोपड़े निकलेंगे। You have to understand how decent you should be. Agree? Similarly for boys. I've seen people are wearing so nuisance things in office. Bobby print ka shirt. In office, not in Goa Beach. Every clothes has their own standard. It has to be wear with that label, right? एक टी शर्ट पहनते हो 3 का सेट आता है ना बिग बाजार में, अरे भाई ये जिम में पहनने का है, इट इज नॉट वेयर इन ऑफिस। ऑफिस में कॉलर टी शर्ट ओनली, दैट टू ऑन ओनली सैटरडे और फ्राइडे, व्हाटएवर एज पर योर पॉलिटिक्स। सो देन लड़कों का बहुत होता है, एक तो यहाँ 2 बटन खुले रखेंगे या फिर 1 बटन, एंड देन ऑफ। ये डिसेंट नहीं है, नो वन वांट्स टू सी योर क्लीवेज। बहुत गंदा दिखता है वो, दिखने में बहुत गंदा दिखता है। यू हैव टू बी टक्ड प्रॉपरली एंड आयरन, प्लीज प्रेस करके, वो शायद नहीं जाना ऑफिस, क्योंकि क्या है ऑफिस में यू आर नॉट ओनली योर सेल्फ, यू आर द एम्प्लॉय ऑफ सम कंपनी, तो उसका भी तो कोई इज्जत है ना भाई कंपनी में, वो भी तो रखना है ना, समझ में है? तो दिस इज ऑल अबाउट डिसेंसी। अग्री? Yes, sir. Any doubt on this? Any doubt? Again, seating, eating posture, you need to understand. When you're meeting your friends, सब कैंटीन में जाके खाना खा रहे हैं, this is a small and as a human being, एक अच्छा आदमी करके before we eat we should offer something, right? This is a small thing. ये हमारे घर में भी हमें सिखाया है, right? We should do that when we are sitting in office. Habit, है ना? वो क्या पूरा तो नहीं करेगा? You also get a chance to eat their foods, right? That we should do. Second, try to hold a conversation in that. Try to get, क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है कि एक आध बंदा ना काम के समय हमें हो जाता है कि इसने मेरी बात सुनी नहीं, मैं इसकी सुनूंगा नहीं, जैसे हम एक परसेप्शन बना लेते हैं, वो परसेप्शन नहीं ऐसे इनफॉर्मल टॉक में निकल जाते हैं। तो हैव गुड इनफॉर्मल टॉकिंग का एम्प्लॉइज, तो इससे वो हट जाए। नॉट ओनली, अब ये नहीं मैं 4 लोग हैं, हम 4 फ्रेंड्स हैं, हम 4 साथ में खाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हैव टू हैव द डिफरेंट, यू शुड एबल टू ईट विद एवरीवन। समझ में नहीं आ रहा, मी तर 4 महालातल्या पोरी आम्ही 5, तू कुठली, तू माळेवाडा तिकडे, हे असं नाही करायचं। समज, आई शुड एबल टू ईट विथ प्रतापनगर, सदर, माळेवाडा, सब, है कि नहीं? Yes, sir. ऐसा करते हैं लोग, है ना? Yes, sir. मैंने देखा है मेरे कंपनी में, I've seen many people, and वो एक ही उनका और तरीका भी बैठने का, 3 इधर 3 इधर, इसके सामने यही बैठेगी, उसके सामने यही बैठेगी, इसके सामने वही बैठेगी, ऐसे देखा है, ऐसा करते हैं। बट दिस इज ए नॉर्मल प्रोसेस। वेन अगेन सीटिंग, हम ग्रुप में बैठ रहे हैं, देन योर पोस्चर शुड बी पोस्चर प्रॉपरली,
ऐसे बैठेंगे, ऐसे एकदम ऐसे रिलैक्स, किसी के सामने ऐसे करेंगे, ऐसे जैसे बोट असं एकदम. किती आळस, किती घाणेरडेपणा, किती म्हणजे समोरच्याला लाज वाटेल इतकं घाणेरडं तर बसून आहे ना माणसाने, ठीक आहे. हे दोघांबद्दल आहे. बाईला बाईचं कळलंच पाहिजे, पुरुषाला पुरुषाला कळलंच पाहिजे. एवढं विजिलंट सगळ्यांनी राहतं. आणि हे सगळं शिकवतात घरी. ये कोई हम बाहर से नहीं, हम सबके घर. मेरे पापा ने मेरे को बहुत बार डांटा है, आई टेल यू. मैं जब पढ़ाई करते करते ऐसे सोफे पे ऐसे हो जाता था, तो मेरे पापा बोले बहुत बार, मुझे मैंने मार खाई इस पे. यार तू अभी ऐसे बैठते तो बाद में कैसे करेंगे. और मेरी माँ को मेरे माँ को मैंने देखा बहुत बार मेरी सिस्टर को डांटते हुए. One day I've seen my sister just sitting very not in proper position in front of guests. My mom, what she did, no, one day she has realized it कि उसको एक दिन पूरा रूम में रखा, तू पहले सीख ले बोले आज इसके सामने कैसा बैठना, आज तू पूरा दिन भर सीख ले, उसके बाद ही आई टेल यू. और उसको इतना मारा उसने, उसके बाद आई हैव नेवर सीन माय सिस्टर टू सिट लाइक दैट. आई एम जस्ट टेलिंग यू, दिस इज यू आल्सो गॉट द सेम. मैं ये मेरे घर की बात नहीं, ये सबके घर में सेम होता है, सबके घर में सिखाते हैं. तो वही हमें फॉलो करना है ना. हम घर में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर होता है पेरेंट्स का. सिमिलरली हमें यहाँ पे भी डर रखना है कंपनी का. करेक्ट. ये हेवी तो नहीं हो रहा है ना आजकल. इंटीग्रिटी, व्हाट इज इंटीग्रिटी? क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब? हाँ नहीं. Integrity is doing good when no one is watching. Correct. It was so much. You are in pharma, what? You are in pharma, yeah? No. Okay. Anyone else want to try on integrity? What is integrity? इसको अपने हिंदी भाषा में एक सरल शब्द है, ईमानदारी. इसके अलावा कुछ मतलब ही नहीं है. He said so rightly, integrity is what? No, when no one is watching and doing right thing is integrity. And that is a culture. And that is a habit. We have to make that habit. कि अगर मुझे कोई देख नहीं रहा है ना, तब भी मैं सही करूँ. हम क्या करते हैं, सिग्नल 9:30 बजे चालू बंद तो रहता है, मामा वहाँ रहता नहीं है, तो हम निकाल देते हैं. क्यों? No one is watching me. रिश्वत इतना तो चलता है. 500 रुपए देके हम सलटाते मैटर, इतना तो चलता है. क्यों? हम यही तो सिखा रहे हैं हमारे आगे वाले जनरेशन को, भाई पैसे देके काम होता है. दैट्स रॉन्ग. वी शुड डू राइट थिंग ओनली. Whatever is written on paper, it has to be practiced. Whatever you are practicing, it should be written on paper. ये फार्मा का उसूल है. वैसे वाई फार्मा में ऐसा है क्योंकि वी आर मेकिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स. अगर उसमें मैं पैरासीटामोल और सॉल्वेंट कोल्ड मिक्स कर रहा हूँ, तो 2 मुझे पैरासीटामोल और 4 सॉल्वेंट कोल्ड डालना है, और वहाँ पे लिखा है 3-3 है, तो मेरा तो कॉम्बिनेशन अलग है. तो मैं लिखा वहाँ पे ये तो आदमी मरे हैं. So it is like that. Integrity is what? Integrity is what? It is doing the right thing always. And how it will come? It has to be come. It should come in your habit. And what is habit? What is habit? आदत ना. आदत यानी क्या होता है? आदत कैसे लगती है? Action that we repeatedly do. So that is a culture, correct? Yes. So that is a culture. हम घर में उठते हैं, नमस्कार करते भगवान को, तो ये हमारा कल्चर है, तो ये हमें आदत लगी है. हम घर से निकलते हैं, अपन तो आई नहीं है, तो ये हमारी आदत है. यही कल्चर है हमारा. Yes. यही इसे हम कल्चर कहते हैं. तो सिमिलर हमें यही आदत बनानी है.
एक चीज देखो, अगर तुमने किसी की भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी तो उन्होंने बहुत मिस्टेक करते हैं बड़े बड़े लोग, बट कोई इंटीग्रिटी में गलत नहीं होता है। कोई चीज गलत मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, मिस्टेक तो हो जाती है, एक हरकत गलत, ये गलत हुआ इसलिए मैं मुझे पता नहीं भाई ये गलत है, इसको छुपाना नहीं है, वो छुपाना है इसकी इंटीग्रिटी। तुम कोई भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद ले लो, तुम विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ले लो, महात्मा गांधी ले लो, कोई भी, डॉक्टर कामत ले लो, कोई भी ले लो, आई टेल यू किसी ने भी, वो लोग वहां तक क्यों पहुंचे? क्योंकि उनमें एक चीज कॉमन है, दे आर स्ट्रॉन्ग विद देयर इंटीग्रिटी। उनको उनका लक्ष्य सही था, उनका यही था कि मैं मेरी इंटीग्रिटी को धोखा नहीं दूंगा भाई, सब करूंगा, मैं इंटीग्रिटी को धोखा नहीं दूंगा, यही है। समझ में आया? लास्ट इज गुड वैल्यू सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? वैल्यू सिस्टम यानी क्या होता है? वैल्यू सिस्टम we get this from family itself. If you see, this is a little bit interlinked, but here it is a vast good value system. क्या होता है? इसको पता है वैल्यू सिस्टम में क्या होता है? हाँ, manners is a part of value system. तत्व, हाँ, तत्व basically. Again, more words related to that. No, you're talking about the value of the cost. No, goods, not. Value system is good. Value system is, I'll tell you. Universal truth that shape us. Right, correct. That is also a part of value system. That is not only the things, many things are there. Who else? Manyata यानी beliefs. I'm talking about good value system. Yes, it's a part of good value system. Who want to try on this? सर जो हैबिट है मतलब वो मतलब पॉजिटिव है, अच्छी वाली होनी चाहिए वैल्यूज में। Yes, correct. That is also part of it. So basically, good value system is what? It's all related to your upbringing. See, सब में होता है, ये सब में है, सब ना कुछ वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम इज नॉट अबाउट यू कैरी समथिंग फ्रॉम एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे कुछ ना हमारे बिलीव्स होते हैं, जैसे यानी सबके होते हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू कोट माय पर्सनल, बट स्टिल एवरीवन हैज देयर ओन बिलीव्स। लाइक यार मैं कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा खुद का बिलीव। मैं कुछ भी हो जाए आई विल नॉट, मैं झूठ बोलूंगा भी नहीं और सहन करूंगा भी। किसी का होता है वैल्यू कि मैं मार खाऊंगा नहीं, मारूंगा भी नहीं। आई मीन सबके अपने अलग अलग एक वैल्यूज होते हैं। मेरा ये है कि आई डोंट वांट टू से समथिंग रॉन्ग, गलत झूठ नहीं बोलना है और मैं सहन नहीं करूँ। तो ऐसा ये हम सब करते हैं ना, अपनी फैमिली से आता है। इससे ही लोग आपको जज करते हैं। अगर आपने कुछ गलत कर दिया, यार इसके घर से ऐसा बोलते हैं ऐसा, यार इसका फैमिली बैकग्राउंड है ऐसा, कम्स रहता है, कुछ तो भी गलत कर दिया, तो ये एकदम देन इट एसोसिएटेड विद योर फैमिली। लोग बोलना चालू करते हैं, हमारे ऑफिस में भी बोलेंगे यार इसके घर का क्या बैकग्राउंड है, जरा पता तो करो, ऐसा बॉस बोलने लगता है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेक इट गुड ओनली। योर वैल्यू सिस्टम इट कम्स फर्स्ट फ्रॉम योर फैमिली, second from your school and colleges where you work, you've been studied, then the environment you are associated with, your friends, people, तुम्हारी भाषा फिर उससे ही बनती है ना, भाषा वहीं से आती है अपनी। then thought, विचार अपने, हम यही सोचते थे वो ऐसी ही करती होगी, अरे क्यों, वो वैसी नहीं भी होगी, हमें क्या पता, नहीं पता ना, क्योंकि हम परसेप्शन बना लेते हैं सर, हम ऐसा सोचने लगते, तो ये हमारा पैटर्न होता है। वो पैटर्न इज वैल्यू सिस्टम, वो सोच है, वो हमारे तत्व है।
बुक्स वो अच्छी ही होनी चाहिए, इसलिए मैंने बोर्ड लिखा है, अच्छी ही होनी चाहिए। हमें कुछ तो भी अच्छा दिखाना है लोगों को, हमें बुरा नहीं दिखाना है। करेक्ट? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से ऑन दिस? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का वैल्यू सिस्टम था, इसकी वजह से वो ऊपर है। उनकी माँ ने इतना इनकलकेट किया उनमें कि वो उसकी वजह से ऊपर है। बाकी वो तो सीख लिए, उन्होंने तो लैंग्वेज, उनको सिर्फ बोलना आता था, लिखना तो आता ही नहीं था 16 साल में, है ना? तो he learned many things later on. First he learned good value system. He able to eat with the people. जो वो खा रहे वो खा सकते थे, करेक्ट? वो तो राजा था, he could have eaten Puran Puri every day, but not like that. He has eaten the what he wanted, right? You should able to be with people. You should be able to means think with the people rather. लोगों के साथ सोचते आना चाहिए, है ना? यही ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, राइट? Anything on these guys? So it's done here, I guess. No, it's one last is stability. Stability it's all about जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, 2 months वाला. Stability it's try to understand what is stability and where you what should change the job. स्टेबिलिटी जब क्या होता है ना, कंपनी फ्रेशर हायर करती है तो दे एक्सपेक्ट कि वो 1 साल तक तो सीखते रहता है, 1 साल तक उसका ट्रेनिंग होता है, एसओपी ट्रेनिंग होते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग होते हैं, वो सीखते रहता है कि वो सिस्टम समझता है, देन कंपनी का कल्चर समझता है, लोगों के साथ घुलता मिलता है, काम समझता है, तो अभी तक वो सीख ही रहा है, तो 1 साल तो सीखता ही है। फिर उसके 1 साल के बाद स्टार्ट गिविंग सर्विसेज, आउटपुट्स, 1-1.5 साल तक वो आउटपुट देगा, है ना? उसके बाद वील पुट हिज ब्रेन, जो तुमने पढ़ा है 4 साल 5 साल ऑफ योर स्पेसिफिक नॉलेज, बीई में जो पढ़ा है, कुछ एमएससी बीएससी जो कुछ किया, तो वो आपको डाल के कुछ आपको फिर उसमें R&D करने का मौका मिलता है, यानी 2.5-3 साल के बाद की बात है, 2.5-3-4। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरा लर्निंग नहीं हो रहा है, आई एम डूइंग द वर्क वॉट एवर वर्क एंड थिंग्स, वर्क एंड आउटपुट, इफ इट इज ओनली हैपनिंग, देन यू शुड थिंक दैट आई शुड चेंज इट। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एट्रिशन इतना हो गया है, लोग आए दिन कंपनी चेंज कर रहे हैं। हमारे वक्त जब मैं जॉब के लिए गया था, आई हैड आस्क्ड माय फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई मेरा जॉब क्या रहेगा। People now ask a simple question to me, a fresher, sir हमारी CTC क्या रहेगी? There's a difference. I know जमाना बदल रहा है, we also need to change, but still this is basic thing. अरे भाई तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, पहले साल में कैसा पूछ रहे हो तुम? लोग पहले पैसा पूछते हैं आजकल, प्रोफाइल कुछ भी, कोई भी प्रोफाइल पे ज्वाइन करेंगे, ये क्या है? कोई भी प्रोफाइल ज्वाइन करेगा, अगले 30 साल तक वही निकालना है भाई तुमको। Then you should be able to understand. You should be able to get it out of from there and then you should be in some. अभी difficulty आता है कि नहीं चेंज करने में? Stability will give you 2-3 things. One is maturity. The stability allow you to become mature और थिंकेबल, क्योंकि तुम्हें उसमें रिसर्च करने का मौका मिलेगा ना वो काम में। नहीं तो तुम एक कंपनी का पूरा सीखे और एक 6 महीने में दूसरे कंपनी में गए, उसके बाद 6 तो तुम तो कंपनी चेंज करोगे, उसमें एडजस्ट होने के लिए 6 महीना लगता है, करेक्ट? ये बार बार चेंज क्यों कर रहा है? सैलरी बढ़ाने के लिए। एक चीज है ध्यान में रखो, तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तुम अपने स्पीड से जा रहे हो, तुम्हारे बाजू में आता है एकदम पहलवान आदमी, फटाफट निकल जाता है फास्ट, और कुछ देर के बाद वो अपने को वही सिग्नल पे खड़ा मिलता है। क्यों मिलता है ना? दिखते हैं ना? यस सर, मिलता है ना? देखो हम भी हमारे वे से जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, ही इज जस्ट शोइंग एंड गोइंग फास्टर,
But later on we are able to catch him there. Why? हमने तो स्पीड मैच कर ली, बट वी आर गोइंग विद आवर ओन स्पीड, वी आर नॉट गोइंग फास्टर विद इट। होता है ऐसा कि मेरे को आज 20 लाख का पैकेज मिला इसलिए मैंने ज्वाइन किया, पर मुझे अभी ये वाले नेक्स्ट जॉब मिलने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आई शुड जस्टिफाई माई सैलरी। ये 20 लाख के लायक में काम कर रहा हूँ क्या, ये मुझे जस्टिफाई करते आना चाहिए। अगर नहीं कर पाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। मुझे वही कंपनी में 10 साल रुकना पड़ेगा जब तक मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा अगली कंपनी में 21 लाख के लिए। अग्री? दैट्स व्हाट। सो स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sorry, no? Actually, I was facing with the problem with the throat infection. So, stability. When you are giving the interviews for a senior position, probably after the 10 years of your services, 10 साल के बाद तब बहुत दिक्कत आती है। अरे भाई आपने तो 10 ये 2 1.5 साल में छोड़ा है। Then what you will answer? एक बार बताएंगे सर इनिशियल जॉब था, सैलरी नहीं मिल रही थी इसलिए, ठीक है, एक आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट जॉब पे तुमने ये ध्यान नहीं दिया कंपनी कैसा है। दूसरे टाइम पे वहां ग्रोथ, तो 1.5 साल में क्या ग्रोथ मिलेगी भाई, क्या प्रोफाइल मिलेगा? नहीं अगेन सैलरी, कितने बार सैलरी नहीं छोड़ेंगे उसको, हमारे लैंग्वेज बोलते जॉब ऑफर। आई टेल यू जॉब ऑफर्स का लाइफ बहुत खराब हो जाता है बात। दे बिकम मुझे रोलर कोस्टर ही रहते वो, एग्जीक्यूटिव के एग्जीक्यूटिव ही रहते हो लाइफ जीवन भर। 1.5 साल में कंपनी चेंज करते दिखेंगे एंड दे विल नॉट बिकम ए मैनेजर इन टाइम बिकॉज कंपनी विल नॉट अलाउ देम टू बिकम दैट। यू हैव टू शो कंसिस्टेंसी, देन ओनली पीपल विल टेक यू। या फिर बहुत सारे लोग मैंने देखा अभी तो लाइक 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, पुराने 2 साल के एक्सपीरियंस गायब कर देते हैं सीटीसी से, सॉरी रिज्यूमे से करने से। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका स्टेबिलिटी नहीं दिखता है, तो पुराने पॉलिश कर देते, मैनेज कर देते हैं इसके साथ। समझा? तो स्टेबिलिटी इज दैट इम्पॉर्टेंट। सी बिफोर गोइंग फॉर एनी जॉब यू शुड सी फर्स्ट हाउ कंपनी इट इज। कंपनी इज नॉट टेलिंग यू अरे नहीं को खूबच महत्वाचं आहे, तू ये माझ्या कंपनी, असं तर नाही आहे। यू आर ऑल्सो गेटिंग इन द सेम चांस whether you want to be employed by the company or not. See, research, ask people, ask your seniors, they know more than you, right? Ask them whether how is this company or not. And once you be in that company, try to learn the things. Try to put your academic knowledge in that. Understood? नहीं तो क्या होगा, इससे सिर्फ तो रोलर कोस्टर बनोगी। आज ये कंपनी कर दो, ये कंपनी कर दो, तो ये कंपनी और डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव वही, आपसे 10% 20% में आप इधर उधर घूमते रहेंगे। चलो समझे? Yes, sir. Anything on this, guys? Anything do you think it should be? I should discuss probably. ऐसा हो सकता है कि मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा, पर शायद आपको लग रहा होगा, तो आई वुड लाइक टू एलैबोरेट। Anything else? सर फर्स्ट पॉइंट आपने कहा कि मतलब बेसिक ऑफ एकेडमिक्स में फर्स्ट ईयर मतलब पहले तो ये का बेसिक पूछते हैं, पर मेरा जो बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और सॉफ्टवेयर में अगर मैं गई तो फिर भी मतलब फर्स्ट ईयर। See, I tell you, why people will take you in software? Try to understand. You are from electronics background, and why people will take you in software? But my transfer my career in the software because I am doing classes of that. No, that's not my plan. You are not getting what I'm saying. You are applying for software industry. Yes. Now, software industry also want people from electronics background. Why they want it? Because they are having the electronics knowledge also. You understood? So that's why you are preferred.
You got my point? So what is their basic now? The electronics academy. Correct? You got the thing? ऐसा बहुत कंपनी में होता है, जैसे अभी हमारा फार्मा में काम कर रहे हैं, हमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर लगते हैं। फार्मा का नॉलेज होना चाहिए जरूरी नहीं है उसको तो इंस्ट्रूमेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट? इंडस्ट्री माइट बी समथिंग, but you should know the knowledge what you are having as in basic, and that applicability you need to see in your industry. As in I am MBA, right? तो वो मेरा HR का नॉलेज ढूंढ रहे हैं, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ फार्मा में, they are not looking at my pharma knowledge, right? मुझे तो कुछ पता भी नहीं। What is dosage मैं कहाँ सीख रहा हूँ, what is dosage form, इंजेक्शन क्या होता है, कैप्सूल टैबलेट, ये तो मैं इधर सीखा, फॉर्मुलेशन क्या होता है इधर सीखा, इसके पहले मुझे नहीं पता था। Agree? Yes, Any question, guys? Sir, like you said, in stability, at least we have spent 2 or 3 years in one company. We should not shuffle from, as you said, 1 year or 1 and so. But sir, if you spend 6 and 7 years, then interviewer asks why you are looking right now, because already you have spent 6 or 7 years. So somewhere we are in comfort zone. Like so, that time they may ask why you don't think to change before that. Why you are changing? You are thinking to change right now. See, So there how are three things now. One is when I am saying 2-3 years. 2-3 years are time where you take as in fresher to understand and put your academic knowledge. Right? When I am talking about 6-7 years, you can justify that too. It is required. I got very good projects in company, hence I have been seated in this company. Right? मेरे पास बहुत काम था इसलिए मैं बैठा, मैं तो खाली नहीं था, और बहुत काम था, तुमने किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। I worked on this project, I worked on that project, I used this, I have learned this, I have learned this. You can justify 6 years I have been doing this. Comfort zone, what you are talking, yes. When it comes, when you are not learning anything, and you feel that now अभी हो जाता है मेरे काम, मेरे फोन के एक फोन से काम हो रहा है, means you are into comfort zone. ठीक है, तो वो जो कंफर्ट जोन ब्रेक करना ही पड़ता है, उसके लिए नया जॉब ढूंढना है। अगर तुम कंफर्ट हो गए तो जिंदगी भर उसमें कम, वो भी गलत नहीं है। बेसिकली कुछ लोगों का होता है एस्पिरेशन, वो भी गलत नहीं है। वो लिविंग इन टू कंफर्ट जोन इट्स ऑल्सो नॉट रॉन्ग। ओके, प्रॉब्ली योर करियर पाथ नॉट बी दैट हाई, बट यू विल हैव अ बैलेंस लाइफ, करियर, ऑफिस, होम, पीपल, सोशल लाइफ, बच्चे, एवरीथिंग। एंड अगर तुम बात करोगे एज इन गुड लाइफ, एक लाइफ साइकिल की बात करोगे, इकिगाई सुना है किसी? हाँ, किसी ने सुना है? सुना है तुमने ना? बुक पढ़े हो तुम? नहीं, मैंने सिर्फ कोड रीड किया उसके। तुमने पढ़ा? just reading, sir. तो किसने पढ़ा है? It's a Japanese technique. They feel ikigai में जितना काम करना चाहिए उतना करना ही चाहिए। From the age of 18 to the मरने तक, there is no retirement. Okay? समझा? उसमें हमें ब्रेक भी लेते आना चाहिए, हमें उसमें एंजॉय भी करते आना चाहिए, हमें उसमें सब करते आना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंफर्ट। यू अंडरस्टूड? तो वो भी गलत नहीं है। 6-7 साल एक जगह पे तुम पूरा दुनिया मीन्स पूरा रिटायर भी हो सकते हैं आपको कंपनी से, एक्सेप्ट यू शुड ऑल्सो सी कि साथ में हमने ये भी देखना है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, व्हाट न्यू थिंग आई कैन डू इन माय दिस जॉब। सेकेंड थिंग आई शुड सी, एम आई यूजिंग माई दैट, जो मेरे पास टाइम मिल रहा है, एम आई रियली यूजिंग दैट टाइम करेक्टली टू फ्लरिश माई सेल्फ और फ्लरिश दिस सोसाइटी, वो भी हमें देखना होता है। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि मैं कुछ एक जॉब करूं जिससे मैं तो पैसे कमाऊं, बट आई वॉन्ट टू पुट माई लाइफ सोशली टू डू समथिंग। जैसे कोई प्लांटेशन में बिलीव करता है, करते हैं लोग, लाखों प्लांटेशन करते हैं। मेरा एक दोस्त है,
He is a pharmacist. He is doing job into college. Why? Because he gets time for doing his personal aspiration, and his personal aspiration is that is socialism. Like वो लोगों में जाता है, सैनिटरी नैपकिन्स बांटता है गांव खेड़ों में बच्चों को, छोटे बच्चों को शिक्षा देता है, वो जिन्हें पढ़ाता है. एक मैंने देखा है वो सब कुछ, वो देख के आया है. इट्स फाइन. आई मीन ही गेट्स दैट एंजॉयमेंट इन लाइफ. उसको एक सैलरी तो मिल रही है, साथ में वो ये भी चीज उसको ही इज गेटिंग हैप्पी इन दैट, राइट. उसको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है सब करने से, बट स्टिल ही इज हैप्पी. बट दैट इज ऑल्सो बैलेंस लाइफ, राइट. सो इट इज एवरीवन हैज, सबने अपना अपना सोचना है कि मुझे क्या बैलेंस लाइफ से जीना है, करेक्ट. एनीथिंग ऑन दिस? बोलिए प्लीज. टुडेज क्लास वाज सो हेवी, और ऐसा तो नहीं कि बहुत आध्यात्मिक या फिर प्रवचन तो नहीं लग रहा था. व्हाई आई एम आस्किंग, इट इज माय पर्सनल थॉट. इट इज नॉट लाइक कि ये आपने ऐसा ही करना चाहिए. ये तो मैंने मेरे हिसाब से बताया, ठीक है. आपके बिलीव्स नहीं भी होंगे गीता रामायण इस पर, मेरे भी है, बट आई समहाउ फील कि इंस्टेड ऑफ सीइंग एज ग्रंथ और पूजा करने से अच्छा पढ़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. उसमें हर चीज में एक मीनिंग है, वो पढ़िए. एक दिन कुछ भी ऐसा ओपन करिए पन्ना, पढ़िए इसमें क्या लिखा है. इट्स वेरी मीनिंगफुल. इसलिए मेरे पास इतनी स्टोरीज होती है, राइट. एनीथिंग एल्स गाइस? Like flexibility, like you said that we should do any work. Means boss give any task anytime, so we should be ready to do. So sir, that it's doesn't mean that means if you have 5 team member in one team, some like one guy is doing all the things, means he is listening all the work whatever he get from his boss. So sir, that time it doesn't mean that like that boss understand that he is the guy that he can do any work from me, from any time. Whatever I said it is wrong, either it is good. So that doesn't mean, so that time flexibility works or not? नहीं, ऐसा नहीं. सी जो तुम कह रहे हो ना, on that we will talk about. Now it is not a flexibility. What you are talking is a situation. Situation is there is a boss and there is a team of 4 or 5 people. In that, boss feels that this person knows everything and other 4 people are not that much useful for him. We can say he doesn't say no. Means whatever he get, he will say yes sir, I will do. ठीक है, अभी इसमें चीज मैं बताता हूँ. Now the approach of the 4 people of that team, that guy and the boss, इस पे perception है सबके. Boss is thinking कि इसको सब कुछ आता है, बाकी को कुछ नहीं आता है. ये सोचे उसका, ये ऐसा तुम कह रहे हो? या फिर वो लड़के को भी, वो जो लड़का है जो कर रहा है, उसको ये लग रहा है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, तो फिर जो बॉस बोल रहा है वो मुझे करना है. ये उसका एटीट्यूड है. एटीट्यूड, द लास्ट थिंग दैट आई स्पोकन अबाउट, राइट. द अदर 4, अरे यार बॉस तो इसको ही देता है, हमको तो कुछ नहीं दे रहा. ये अगेन परसेप्शन. Why can't we be that guy? And then here boss, as in boss, I should develop my entire team. It's not only one guy. I should develop my entire team. It is boss works also. If it is not doing, then he is a failure as a boss. You should not go and teach him कि भाई तुम fail हो. No, he will get to know. उसको समझ में आएगा बाद में. अगर if he is experienced, वो तुम्हें जाके बताने की जरूरत नहीं. You try to understand कि वो लड़का क्या कर रहा है. Try to understand from him and get that positive thing from him and do that. You got my point? Then he will understand. अरे नहीं यार, मैं इसको फालतू में चढ़ा के रखा, ये लोग भी तो है और ये भी तो अच्छा कर ही रहे. Then he will understand. Then he will put their words to you also. It's a situation. It's not flexibility. Anything else, guys? डन है, ठीक है.
I'll just wrap up for 10 minutes before today, as I'm not well actually. But what we're going to see in next class that we see जॉब सर्चिंग के टिप्स है जो हम नौकरी पोर्टल पे कैसा डालते हैं जो क्या करना चाहिए देयर वी विल सी रेफरेंसेस ऑफ मेल्स के बारे में विल सी एंड इंटरव्यू टिप्स है वो हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें बीजीवी क्या होता है एंड देन हाँ ये वाला चीज देख लो इसमें कोई फंसा है क्या हाँ कोई पैसे दे के जॉब के आया है क्या हाथ ऊपर करो क्या इसमें से ऑफर्स आए थे Offers आए थे। नहीं एक मिनट पैसे देके ऑफर किसको है हाथ ऊपर करो बोल रहे थे पर दिए नहीं मुझे पैसे दिए थे नहीं दिए पैसे दिए मना कर थे दिए। किसने पैसे दिया प्लीज नोट दिस good organization don't take any type of favor for providing employment for anyone हम पैसा नहीं देते हमको जरूरत है जब फिर तुमने किसको पैसा दिया बेटा सर वो अमेजोन का उन्होंने बोला था बट मुझे नहीं समझ में आया वो एक फॉर्म भी उन्होंने फिल करने के लिए दिया था ये चीज चेक करना उसमें साइन ऑफ जॉब स्कैम यू नीड टू पे टू गेट द जॉब ऐसा वो लिखते हैं यू नीड टू सप्लाई योर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन ये मांगते हो लोग कैंडिडेट आर आस्क्ड टू डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फीस वाया वैलेट और बैंक ट्रांसफर वो उससे करते हैं वो कभी चेक वेक तो नहीं मांगते क्यों नहीं करते वो इजी एंड डोमेन चेक करना ना ईमेल आईडी कहाँ से मिला है जीमेल से आ रहा है तो इट इज फेक ओनली इट शुड बी एट amazon.com होना चाहिए यस सर हमारे कंपनी में इतने लोग आते हैं बेचारे इंटरव्यू ये मैं इसलिए ले रहा हूँ बाकी तो मैं बाकी ये मैं इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज ज़्यादा लोग हैं इसमें से 2-3 कल अपसेट रहे तो ये चीज़ तो पहले पता होनी चाहिए जमीन बेच के 1.5 लाख 2 लाख रुपए गरीब किसान की लड़की को जमीन बिचवाई अपने पास होगी और पैसा खड़ा करके उसको ऑफर लेटर आया है उसमें सिग्नेचर अर्पित मेरा सिग्नेचर था कहीं से तो भी ढापा हुआ और शी गॉट ए जॉब ऑफ 2 लाख व्हाट द मींस मैंने तो ऐसा ऑफर भेजा नहीं आई हैव चेक माय ईमेल ट्वाइस कि यार मैंने भेजा कैसे कुछ ऑफर फिर मैंने बोला भाई तू अपना अभी यहाँ पे लॉगिन कर गेट पे हमने लॉगिन करा है मैंने बोला देख ईमेल आईडी कहाँ से है अर्पित रामतकर lupin@gmail.com ये मेरा आईडी नहीं है and she had paid 78,000 उसके पापा बोल रहे थे कि जॉब कर हम तो लेंगे ही नहीं जो लड़की को खुद के नॉलेज पे विश्वास नहीं है उसको हम कैसे लें इसका मतलब यही हुआ ना वेन यू रिक्वायर फेवर्स मनी कब देना पड़ता है जब तुम्हारे नॉलेज पे विश्वास नहीं तुमको कि ये जॉब लगेगी करके उसको जिंदगी भर लुपिंग में नहीं देंगे क्योंकि शी इज ब्लैक लिस्टेड I should get a job on my skills, my knowledge, my attitude. मुझे सेल करने के लिए और पैसे नहीं देना है किसी को एजेंट भाई एजेंटशिप रिक्वायर्ड नो वन आस्क फॉर मनी ठीक है चलो ऑल द बेस्ट गाइस